جب ایم کیو ایم کئی سال سے ریاستی جبر کا سامنا کر رہی ہے اور میڈیا اور مختلف ذرائع سے مختلف ہتھ کنڈوں سے ایم کیو ایم کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اس کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے ملک دشمن اور جرائم پیشہ لوگوں کی تنظیم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے قیام کے بعد یہ کئی بار ہوا ہے۔ الحمدللہ متحدہ قومی موومنٹ کو اللہ کی طرف سے ایک ایڈوانٹیج یہ حاصل ہوا ہے کہ ہمارا جو ووٹر ہے وہ پاکستان کا سب سے باشعور، پڑھا لکھا اور میں بڑے یقین سے کہوں گا کہ شاید سب سے محب وطن ووٹر ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب لوگوں کو ایم کیو ایم سے متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر ریاستی جبر کے ذریعے، لالچ اور خوف کے ہتھ کنڈوں کے ذریعے ایم کیو ایم کے کارکنان کو اور ذمہ داران کو ایم کیو ایم کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کے حالات اور ترغیبات موجود ہیں۔ ان حالات میں قدرت کے اپنے انتظامات ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب ایم کیو ایم کے خلاف ہر ذرائع سے غلط فہمیاں اور خدشات اور اندیشے پیش کیے جا رہے ہیں، ایسے موقع پہ صاحب علم، صاحب دانش، وہ جو قلمکار ہیں، لکھتے ہیں، رائے رکھتے ہیں، رائے بناتے ہیں، وہ اس موسم میں کہ جس کے لیے ایسے تانے بانے بنے گئے تھے کہ لوگ ایم کیو ایم کو چھوڑ کے جائیں، لوگ ایم کیو ایم میں شامل ہو رہے ہیں۔ گو کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے کہ جن کو اس تنظیم نے نام دیا، پہچان دی، مقام دیا اور اس قابل کیا کہ آپ کا میڈیا ہمیں دکھائے، ہماری بات سنے، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے بھی احسان کے بدلے احسان فراموشی دی ہے، نہ صرف تنظیم کو بلکہ قوم کو۔ ایک ایسے مشکل وقت میں ہر وہ شخص جو اپنی ضمیر کی عدالت میں اور سوچ سمجھ کر ایم کیو ایم میں آ رہا ہے، وہ ہر طرح کی عزت کا حقدار ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں آج بھی وہ لوگ جو ہمارے لیے اساتذہ کا درجہ رکھتے ہیں، جن سے ہم رائے لینا چاہتے ہیں، جو خود صاحب رائے ہیں، وہ آج ہماری تنظیم میں شامل ہو رہے ہیں۔ ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے قائد تحریک الطاف حسین پر مکمل اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں ان سب کو ایم کیو ایم میں شمولیت تو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اپنی اس پریس کانفرنس کو آگے بڑھانے کے لیے محفوظ یار بھائی سے، رابطہ کمیٹی کے ممبر، ان سے کہتا ہوں کہ مزید گفتگو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے وہ تمام معززین جنہوں نے اپنی پوری زندگی ٹریننگ، جوڈیشری، پراسیکیوشن، پروفیسر، شاعر، ادیب کی حیثیت سے گزاری ہے، آج ان کا مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان حالات میں جب جبر کی چکی چل رہی ہے اور لوگوں کو ٹیلی فونوں کے ذریعے اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کا موقع
देकर ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है, उस दौर में ये इस शहर के वो नामवर सपूत हैं जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, इस शहर की खिदमत की है, लेकिन कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए आज बाकायदा MQM में शामिल होकर भाई की उस तहरीक को, भाई की उस सोच को और मुहाजिरों की कौमियत को अपना जोर लगाने के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मेरे दाएं हाथ पर मोहतरम मीर जावेद इकबाल साहब हैं, जो 10 साल से ज़्यादा कैबिनेट डिवीज़न के डायरेक्टर रहे और 2012 में डायरेक्टर जनरल नीपा की हैसियत से रिटायर हुए हैं। इनके बेशतर शागिर्द इस वक्त भी हसास इदारों में अहम ओहदों पे काम कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के जितनी भी चेन इनके दौर की है वो सब इस मुल्क में इस वक्त मुख्तलिफ शोबे में काम कर रही है। मैं मीर जावेद इकबाल साहब को MQM में शमूलियत पर खुशामदीद कहता हूँ और ये तवक्को करता हूँ कि वो जो हमने प्रोग्राम बनाया है MQM का, कि हम अपने मुहाजिर बच्चों को और इस शहर के बच्चों को जमा करके CSS की तैयारी कराएंगे, ताकि कोटा सिस्टम की वजह से जो हम पर मुख्तलिफ क़रग़ने लगी हुई हैं, हमारे बच्चे मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब हों और इस शहर को हम दोबारा अच्छी ब्यूरोक्रेसी दे सकें। मेरे अगले साथी रिटायर्ड असिस्टेंट सेशन जज अजमतुल्लाह साहब हैं, जिन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी प्रोसिक्यूशन में गुजारी, उसके बाद सीनियर सिविल जज की हैसियत से और असिस्टेंट सेशन जज की हैसियत से अपनी खदमात अंजाम देते रहे हैं। इन्होंने भी मुख्तलिफ हालात को देखते हुए, मुख्तलिफ मामलात को देखते हुए ये कहा कि आज के हालात में अगर हम MQM में शामिल होकर अपनी इस पूरी ज़िंदगी का जो निचोड़ है इस नई नस्ल को मुंतकिल नहीं करेंगे तो ये बुख्ल होगा। कायदे तहरीक के पुराने चाहने वाले हैं और उन्होंने आज बाकायदा तौर पर कायदे तहरीक की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए MQM में शमूलियत हासिल की है। इनकी शमूलियत का मैं ज़बरदस्त खैर मक़दम करता हूँ। इत्तेफाक से चूँकि स्टेज पे पूरी नशिस्तें आ नहीं सकती थीं, तो मेरे बड़े मोहतरम प्रोफेसर हुसैन मलाठवी साहब हैं, जो सीनियर असातिज़ा में शुमार होता है, मुख्तलिफ जामियात में और दर्स व तदरीस की किताबें लिखी, मज़ामीन लिखे। ये मेरे पीछे इसलिए इन्हें बिठाया था ताकि आपको तस्वीर में आसानी हो जाए। इस शहर के मारूफ उस्ताद हैं और जामियात में और मुख्तलिफ इदारों में और मज़ामीन भी लिखते रहे हैं। आप जो सहाफ़ी हजरात हैं इनकी सोच से वाकिफ़ होंगे। उनको कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के फ़लसफ़े पे यकीन रखते हुए आज की इस शमूलियत पे दिल की गहराइयों से MQM की राब्ता कमेटी की जानिब से, अल्ताफ़ हुसैन भाई की जानिब से और दीगर जो हमारे शोबे जाते हैं जानिब से मुबारकबाद देता हूँ शमूलियत पे। 40 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं। और बता दें प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब कोई 40 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी हैं और पाकिस्तान के कॉलेजेस में और दुनिया भर में उनकी किताबें बहुत मकबूल हैं। मेरे पास एक इस वक्त उनकी किताब है फंडामेंटल्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक्स। ये पाकिस्तान के तमाम कॉलेजेस में चलती है और ये मानी जाती है, और एक बहुत अच्छी किताब पाकिस्तान बनाने की तारीख के हवाले से और मशरक़ी पाकिस्तान में जो तजर्बात हुए उनके हवाले से। इसका नाम है पाकिस्तान के ताक़ुब में, यानी पाकिस्तान के ताक़ुब में हम लोगों ने क्या खोया है और क्या पाया है, ये पूरी हिस्ट्री है। उसके अलावा एक और किताब है मुआशियात इस्लाम, यानी इस्लाम में मुआशियात का क्या मकाम है और उसकी इस्लामी हैसियत क्या है, उसके हवाले से उनकी बहुत सारी किताबें हैं। दूसरा है उसूल बाजार कारी, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। तो प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब पूरे पाकिस्तान में जाने पहचान हैं
पाकिस्तान की एजुकेशन में उनका बहुत बड़ा किरदार है और उनकी किताबें पूरे पाकिस्तान में कोर्स में पढ़ाई जाती हैं एमए और बीए के लेवल पर। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के बराबर में डॉक्टर जावेद मंजर, एक ऐसा नाम शायरी की दुनिया का जिनके बहुत सारे दीवान छपे हैं और इन्होंने कराची पे पीएचडी भी किया। बहुत मशहूर शायर हैं, ज़माने तालिब इल्म से एक्टिव रहे, स्टील मिल पे बड़े आला ओहदे पे फाइज रहे, रिटायरमेंट के बाद उर्दू कौमी बोर्ड के ये निगरां और मुशीर मालियात रहे हैं और आज इन तमाम सलाहियतों के साथ अपने उस दीवान के साथ जो इनका अभी नया छपा है, जो अभी वो कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को पेश करेंगे। और इससे कबल 5 जो मजमुआत इनके शाया हो चुके हैं, इनको मैं दबिस्तान कराची के नाम से पीएचडी किया है मजमुए पे। और आज बहुत पुराने स्काउट हैं, बूतराब स्काउट में रहे और आला एजाज़ात हासिल किए हैं। और अभी मुझे जावेद भाई ये बता रहे थे कि चूंकि भाई की जो फिक्री नशिस्तें होती थी तो यहीं रहते थे और शरीक तो नहीं होते थे, लेकिन आवाज़ से मानूस थे, सुनते थे, कहते थे हमने जिस जबर में, जिस कर्ब में अपनी सरकारी ज़िंदगी गुजारी है, आज अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है कि हम एमक्यूएम में शामिल होकर भाई की उस सोच को आगे बढ़ाएं और लोगों को बतलाएं कि अगर इस मुल्क में कोई कायद है तो कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई हैं। इस सिलसिले में एक नज़्म लिख कर आए हैं जावेद भाई, वो भी आपको सुनाएंगे अभी भाई की मोहब्बत में। इनके साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मालिक हैं जो उर्दू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रिटायर्ड हुए हैं, 3-4 पीएचडीज सोशल साइंसेज में करा चुके हैं और अब भी इनके 1-2 तालिब इल्म जो हैं वो पीएचडी कर रहे हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे काम कर रहे हैं, लिहाजा इन पर कोई पाबंदी नहीं है और ये बचपन से कायदे तहरीक के वोटर और सपोर्टर रहे हैं और इसी शहर में काम करते रहे हैं। आज बाकायदा तरीके से कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की सोच व फिक्र को सामने रखते हुए एमक्यूएम में शामिल हो रहे हैं। मैं तमाम साथियों को, 5 साथियों को इस अंदाज से खुशामदीद कह रहा हूँ कि ये 5 लोगों का वो गुलदस्ता है जिसके बारे में हम जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक़ीदत का इज़हार करते हैं और उन पंजतन पाक का तज़किरा करते हैं, खुदा के नूर से पैदा हुए हैं 5 तन, मोहम्मद अस्तु अली फातिमा हसन हुसैन। तो आज ये जो 5 रुकनी जो टीम आई है, इनमें से इस गुलदस्ते में जुडिशरी भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, प्रोफेसर्स भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं। तो ये जो तहरीक को जो नया खून मिल रहा है, मैं इन तमाम साथियों को आज की इस शमूलियत पर एमक्यूएम की राब्ता कमेटी की जानिब से, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की जानिब से खराज तहसीन पेश करते हुए खुशामदीद कहता हूँ और अपने इन दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ कि मुख्तसर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। मीर जावेद इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंबरान राब्ता कमेटी और हाज़रीन, सबसे पहले तो मैं कायदे तहरीक अल्ताफ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस तहरीक में शमूलियत का मौका दिया और उसके साथ साथ मैं भाई को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि उन्होंने इस तहरीक को जारी रखने के लिए जिस कदर कुर्बानियाँ दी हैं वो बेमिसाल हैं, जो उन्होंने अपनी ज़ात से दी है। और इस तहरीक में उन्होंने अपने ख़ानदान की जो कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने अपने भाई को के इसको जारी रखने के लिए जो शहीद हुए, उनके भांजे, उनके भतीजे जो है वो शहीद हुए, तो ये तहरीक कामयाब रही है।
اور میں بھائی کو اس لحاظ سے بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ بھائی نے جس سرمایہ دارانہ نظام، جاگیردارانہ نظام، نامنصفانہ نظام اور احتسالی قوت کے اگینسٹ جو تحریک جاری رکھی ہے، وہ اس کا آج میں ایک حصہ بن رہا ہوں، اور میں انشاءاللہ اس میں ہر لحاظ سے تعاون کروں گا۔ میں بھائی کے فلسفہ حقیقت پسندی اور عملیت پسندی کی تائید کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ اس شہر میں اس مہاجروں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے، جس طرح دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، جس طریقے سے ان کے راستے بند کیے گئے ہیں، اگر ہم آج اپنی کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں یا کسی چیز کو ہم مانگتے ہیں، مثلا نوکریوں کو آپ دیکھیے، آج آپ پورے سیکریٹریٹ میں جائیے، کسی سرکاری ادارے میں جائیے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو، آپ کو دیکھیں گے کتنے مہاجر لوگ آپ کو وہاں نظر آئیں گے، کتنے اردو اسپیکنگ آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے، ہارڈلی آپ کو چند ایک نظر آئیں گے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ہمیں صرف اس وجہ سے لگا ہے تاکہ یہ استحصالی قوتیں ہمیں آگے نہ بڑھتے تھے، مگر اس میں انشاءاللہ اس تحریک میں اپنے جیسے اور ساتھیوں کو جو خاموشی سے اس تحریک کا ساتھ دے رہے ہیں اور پیچھے سے اس کی مدد کر رہے ہیں، ان سے یہ میں کہوں گا کہ اب یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو چھپ کے پیچھے رہ کر اس تحریک کے لیے کام کرنے کے بجائے سامنے آئیے اور آپ لگیے اور اس تحریک کو اس تحریک میں کام کیجیے اور اس کے جو بھی فلسفہ ہے اس کو آگے بڑھائیے اس تحریک کے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک شعر کے ساتھ اس کو میں ختم کروں گا۔ یہ بھی رہے خیال ستانے کے ساتھ ساتھ، ہم بھی بدل رہے ہیں زمانے کے ساتھ۔ بہت اچھا۔ جناب عظمت اللہ صاحب، تھوڑا سا آپ کو اس طرف آنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، کئی بار چلو ہو جائے گا، چند جملے کہہ دیجیے تاکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں الطاف بھائی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جو جد و جہد ان کی ہے، میں آج سے نہیں تقریباً 30 سال پہلے سے متاثر ہوں، لیکن کچھ میری مجبوری کی فیملی ضروریات کی، جس کی وجہ سے نوکری میں چلا گیا اور وکالت جیسے پیشے کو میں بھائی کھو نہیں رہا طور پر میں وکیل، اتنا ہی کھنچ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر ٹھیک ہے بس، ہوا پولیس کا، اس کے بعد پھر جوڈیشل مجسٹریٹ رہا، سینئر سول جج اینڈ اسسٹنٹ سیشن جج، اس کے بعد 60 سال عمر ہو گئی، ریٹائر ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے وکالت شروع کی اور آج میں وکیل بھی ہوں، رجسٹر ہوں باقاعدہ۔ تو میں MQM میں کسی اور وجہ سے نہیں آیا، صرف الطاف بھائی کی جد و جہد کو دیکھ کر اور جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے مہاجروں کے ساتھ، اردو اسپیکنگ کے ساتھ، میں پہلے بھی تڑپتا تھا، آج بھی تڑپتا ہوں۔ میری کوشش ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیتیں عطا کی ہیں، میں ان کو بہت تنظیم کے لیے وقف کر دوں اور الطاف بھائی کی اس تنظیم کو آگے بڑھنے میں مدد کروں۔ شکریہ بہت۔ پروفیسر صاحب کو پہلے کہہ دیں، نہیں ان سے کر لینا۔ جاوید منظر صاحب، بہت شکریہ۔ جاوید منظر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں الطاف بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس شہر، اس ملک کی اور اس کے عوام کی خدمت کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ رہوں۔ تفصیل سے تو محفوظ خان بھائی نے بتا دیا ہے۔ وہ جو میری کتاب کا ذکر کیا جو ابھی آئی ہے، 5ویں کتاب جہان لطیف ہے، شاہ عبداللطیف بھٹائی کے 30 سر ہیں۔ یہ پہلی دفعہ یہ کام ہوا ہے، اس سے پہلے کام نہیں ہوا تھا۔ یہ بات ڈاکٹر پروفیسر جی الانا نے اس میں لکھی ہے، اور اب سے کوئی 10 سال پہلے
यहाँ रिसाला छपा, उसमें मेरी नज़्म आई थी, उसका एक मिसरा है कि सबके घर हैं और बेघर कायदे तहरीक है। इस नज़्म को मैंने पेश किया था जो यहाँ पर छपी थी, और ये जो आज नज़्म का हवाला महफूज भाई ने दिया है, ये बहुत तवील नज़्म है, वक्त बहुत कम है, मुख्तसरन हमें गुफ्तगू करना है जो आजकल के हालात हैं और जो हालात हैं और जो उस हवाले से हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। तो मैं एक छोटी सी नज़्म पेश कर देता हूँ। महफूज भाई की भी, महफूज भाई की ख्वाहिश है और हमारे खानज़ादा साहब भी, तो वो नज़्म समाअत फरमाइए। हज़ार सोचों का जहर जिस्मों को डस रहा है, हर एक चेहरा उदासियों की अताह गहराइयों गुम है, और इनकी आंखें जो अब से पहले मोहब्बतों की अमी रही थीं, इबादतों की जबी रही थीं, वो आज सूरज उगल रही हैं। अजाब जहनों में घुल रहा है, ज़मीन अपने पुराने महवर को दफन करने की फिक्र में है। मैं ऐसे लम्हों के साए साए उफ़क़ के उस पार आने वाले दिनों की ताबीर पढ़ रहा हूँ, जहाँ पे एक दिन पुराना सूरज खुद अपनी बीनाई खो चुकेगा और इस ज़मी की जबी से उभरेगा आने वाले दिनों का सूरज, जो अपनी किरणों को अजमतों का अमी बनाकर लहू में उल्फत का नूर भरकर हर एक बदन को बस एक सांचे में ढाल देगा, जहाँ न रस्मों का जहर जिस्मों को खा सकेगा, जहाँ न इंसानियत का लाशा किसी का कांधा उठा सकेगा। हर एक चेहरा गुलाब होगा, हर एक चेहरा सदाकतों की किताब होगा। वो दिन भी कितना अजीब होगा, वो दिन भी कितना अजीब होगा, वो दिन भी कितना अजीम होगा, वो दिन भी कितना अजीम होगा। बहुत माशाअल्लाह। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब चंद जुमले। हाँ, बस चंद जुमले। जनाब हाज़रीन गिरामी और राब्ता कमेटी के अरकान, अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब अल्ताफ़ भाई का बहुत मशकूर हूँ कि आज उन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर आए और हमने इस मुतहदा कौमी मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार की। बात यह है कि अल्ताफ़ भाई ने जो फ़लसफ़ा दिया वो ये है कि ये तनावर दर्द बन चुका है मुतहदा कौमी मोमेंटम, और इसकी जड़ें पूरे पाकिस्तान लेवल पे फैल चुकी हैं। इसको जहाँ तक भी कोई कोशिश करे, टहनियाँ कट तो सकती हैं, टूट तो सकती हैं, मगर ख़त्म नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया। नए पोर्टल इसमें आ सकती हैं, नए लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, और ये दिन ब दिन परवान चढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई इसके लिए ये कोशिश करे कि इसको ख़त्म कर दें तो ये नामुमकिन है, क्योंकि इसकी टहनियाँ और जड़ें पूरे पाकिस्तान लेवल में फैल चुकी हैं। शुक्रिया। मैं इसी के साथ आप सबका शुक्रिया रखता हूँ। आखिर में चंद जुमले प्रोफेसर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ मेरी नशिस्त पे आकर, क्योंकि आप हमारे सबसे मोहतरम और मुक़द्दम। तकरीर करने 2-3 मिनट, 1 मिनट का कर लीजिए तारुफ बस। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। भाई, मैं तकरीर करने की सलाहियत तो नहीं रखता, लेकिन मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब की खूबियों से मुतासिर हूँ और उनकी वजह से महाजरों की जो जैसी सूरत है, ये उनका करम है अल्ताफ़ हुसैन साहब का, जिनकी वजह से हमारी थोड़ी वरना हम कहीं नहीं होते, कोई नहीं पूछता। और ये जो है हमारे लिए सबसे बड़ी हस्ती है, जिसको कि हम अपनी तकरीर करने से कासिम में तकरीर करने से बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद साफ़ी हज़रात, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को तोड़ने, ख़त्म करने, उसका चेहरा ख़राब करने की जो साजिशें और नाकाम कोशिशें हो रही हैं, पूरी कौम को क्रिमिनलाइज करने, डिमोरलाइज करने और आइसोलेट करने की कोशिश हो रही है। साइंस का एक कुलिया है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। उनके अमल का हमारी कौम की जानिब से ये रद्द अमल है
جو آپ کے سامنے آ رہا ہے. ایک پڑھی لکھی قوم، اور آج جو اہل دانش، اہل علم، پروفیسر، ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلا ان چند مہینوں میں جس طرح از خود اپنی قوم کے ساتھ ہونے والے سلوک کے نتیجے میں آ رہے ہیں، ان کی شمولیت خود باقی لوگوں کے لیے ایک دعوت فکر ہے. اور ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایم کیو ایم کو ڈھانے اور گرانے آتے ہیں، اور وہ مزید توانا، مزید طاقتور اور مزید مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ جبر کا موسم ختم ہوگا تو ایک ایسی بہار یہ قوم دیکھے گی جو بہت طویل عرصے انشاءاللہ تعالی ہمیں منور بھی کرتی رہے گی اور شاداب بھی کرتی رہے گی. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ لگتا ہے بہت اچھا. جی آپ کی بات بھی کرتے ہیں.